Hello students, welcome to your English class. I am Rekha Tawar and today we are going to read third poem of your Beehive book. The name of the poem is Rain on the Roof and the name of the writer is Court Skinny. Actually, Rain on the Roof is one of the most popular poems of Court Skinny. Rain is actually a word that brings excitement and thrill to every human being, whether he is a small kid or an old aged person. Everyone feels excited when it is raining outside. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining. Have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? The writer asks us कि जब आसमान में काले काले बादल घिर आएं और अचानक बारिश शुरू हो जाए तो क्या आपने कभी छत पर पड़ने वाली बारिश की आवाज़ को सुना है? What is the meaning of patter? Patter is light tapping sound. जब बारिश की बूंदें पत्तों पर या छत पर कहीं पर भी गिर रही होती हैं तो उनसे टप 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 करके कॉन्टिन्यूस एक आवाज़ आती है. दैट साउंड इज कॉल्ड पैटरिंग साउंड. What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? Now, what is the meaning of melody? Melody is sweet music. The poet says, what thoughts flashed through your mind? आपके दिमाग में क्या विचार आते हैं as you heard this melody of nature? जब आप इस melody of nature को, इस प्रकृति के संगीत को सुनते हैं. So here the rain has been compared to the melody of nature. Let us read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. इस पोएम को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि पोएट के हार्ट में क्या फीलिंग्स आई जब वो इस बारिश के संगीत को सुन रहे थे. When the humid shadows hover over all the starry sphere and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Let us take the word meanings. Here, humid. Humid. Humid means wet. Wet मतलब नमी से भरा हुआ, गीला. Then hover. What is the meaning of hover? Hover means to remain in the air. हवा में बने रहना, आसपास बने रहना. That is called hovering. हिंदी में जो मंडराना नाम से एक वर्ड होता है ना, that is called hover. Then starry means full of stars. And sphere, what is sphere? You have read in the mathematics. Sphere is round solid figure. Here spheres has been referred to the sky. When we look in the sky, it appears as if it is a solid sphere around the earth. So that's why the poet has called it sphere. Starry sphere, a sphere full of stars. So here starry sphere refers to the sky full of stars. तारों से भरे आसमान को उसने starry spheres कहा है. And the melancholy darkness. Melancholy is, what is melancholy? Melancholy is sad.
A sad feeling is called melancholy. Darkness, अंधेरा, अंधेरे को हमेशा उदासी से रिलेट करके डिस्कस किया जाता है जनरली पोइट्स के द्वारा. Bliss is happiness. Cottage, a small hut sort of thing. Cottage chamber bed means bed in the bedroom. Patter, I had already told you, that is repeated light tapping sound. Overhead means above head. So now let us discuss the meaning of the poem. Now we have understood the meaning of the words. Now let us discuss the poem, what the poet wants to say. When the humid shadows hover over all the starry spheres. Humid shadows, यहाँ पर humid shadows किसे कहा गया है? Humid means full of moisture, wet, shadows, some kind of shadow. यहाँ पर humid shadow का मतलब है बादल. When the humid shadows hover, hover means to remain in the air, मंडराना हवा में. तो over all the starry spheres, starry spheres, तारों से भरा आसमान, कि जब तारों से भरे आसमान में घने काले बादल छाते हैं, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. Gently, softly weeps, cries in rainy tears. Here the poet is compared darkness to a person who is sad and who is gently weeping, and he has called rain as his tears. पोएट कहता है कि आसमान में जब काले बादल छा जाते हैं और तारों से भरे आसमान में काले बादल छाते हैं और मेलंकली डार्कनेस और उदासी भरा अंधेरा जेंटली सॉफ्टली रोता है, किसमें? इन रेनी टीयर्स, बारिश के आंसुओं से रोता है. उस समय व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड. पोएट सेज व्हाट अ ब्लिस, कितनी खुशी होती है, कितना अच्छा कंफर्टेबल फीलिंग होती है अगर आप अपनी कॉटेज के चैम्बर के बेड में lie listening to the patter of the soft rain overhead, लेटे हुए हैं और सुन रहे हैं उस पैटर को, उस पैटरिंग साउंड को जो कि रेन से हो रहा है, सॉफ्ट रेन से हो रहा है ओवरहेड, आपके सिर के ऊपर, आपकी छत के ऊपर जब वो बारिश गिर रही है और उससे सॉफ्ट जो साउंड आ रहा है उसको आप अगर अपने बेड में लेट कर सुन रहे हैं तो इट इज़ ए ब्लिस, आपको बहुत ही अच्छा फील होता है. सो हियर दिस द पोएट वांट्स टू से कि while he is lying in his cottage chamber bed, he is feeling as if the sky is a person who is crying, who is gently weeping with rainy tears. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start. And 1,000 recollections weave their ear threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Now let us take up the word meanings. Tinkle. Tinkle means ringing sound. Soft ringing sound is called tinkle. Shingles are the
tiles which make the roof, which are used on the roof. They have given you the meaning of the shingle, that is rectangular wooden tiles used on roofs. आपने पिक्चर्स वगैरह में वो टाइल्स से बनी वाली छत देखी होगी, तो उन्हें शिंगल्स कहते हैं. Has an echo. Echo is a reflection. Sound reflection is echo, प्रतिध्वनि. जब आप ज़ोर से कहीं पर पहाड़ी पर चिल्लाते हैं या फिर एकदम एम्प्टी रूम में जाके चिल्लाते हैं ज़ोर से, तो एक इको ऑफ साउंड आता है, उसकी आपकी आवाज़ लौट कर आती है. दैट इज़ कॉल्ड इको. इन द हार्ट. इको इन द हार्ट मतलब मन में प्रतिध्वनि होना. ज़ोर से कानों पे नहीं होती है, मन में होती है. फैंसीज. फैंसीज मीन्स इमेजिनेशन. Busy being. Busy being here refers to human beings. Recollections. Recollections are memories. यादें. यादों को हम बोलते हैं recollections. Weave their air threads into woof. Woof क्या होता है? Weave मतलब बुनना, और woof एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ जो कपड़ा बुनने में यूज़ होता है. और उसमें क्या होता है, इस तरीके से एक साइड पर इस तरीके से थ्रेड्स होते हैं और दूसरी साइड पर एक ऊपर नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे करके जो वीवर है उसको बुनते जाता है एक के ऊपर एक इस तरीके से. तो वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ के इस तरीके से फिर वो पूरा हमारा कपड़ा बन जाता है. जब वीवर उसमें बार बार इस तरीके से करता है तो वो कपड़ा धीरे धीरे इसको ऐसे ऐसे भी करता जाता है वो बीच में, इससे क्या होता है, कपड़ा बन जाता है. एज आई लिसन टू द पैटर हमें पता ही है कि क्या होता है. सॉफ्ट टैपिंग साउंड इज कॉल्ड पैटर. नाउ लेट अस डिस्कस द पोएम. व्हाट डज द पोएट वांट टू से? एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स has an echo in the heart. Now the poet is lying in his cottage chamber bed and now he is thinking कि every tinkle on the shingles has an echo in the heart. कि छत पर जो टाइल्स पर शिंगल्स पर टिंकल हो रहा है हर एक रेन की बूंद का, रेन ड्रॉप का, हैज़ एन ईको, उसकी एक प्रतिध्वनि कहाँ पर है? इन द हार्ट, मन के अंदर पैदा हो रही है. जो एक्साइटमेंट पानी गिरने से छत पर हो रही है वही एक्साइटमेंट मन में भी हो रही है. एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज. एंड 1,000, और जब ये इको हो रही है, ये हैप्पीनेस की इको हो रही है, तो उस समय 1,000 हज़ारों ड्रीमी फैंसीज, एज इफ इन ड्रीम. ड्रीमी मीन्स एज इफ इन ड्रीम, कि ऐसे लगता है जैसे सपनों भरी कल्पनाएं. इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. सपनों भरी कल्पनाएं इंसान के मन में आनी शुरू हो जाती हैं. एंड 1,000 रिकलेक्शंस, और केवल कल्पनाएं ही नहीं, एंड 1,000 रिकलेक्शंस, और हज़ारों यादें. weave their air threads into woof. weave their air threads into woof. अपने एयर थ्रेड्स से, हवा के धागों से ताना बाना बुनती हैं. एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन अपॉन द रूफ. जब मैं उस पैटरिंग साउंड को सुनता हूँ जो कि रेन से हो रहा है, रूफ पर, छत पर हो रहा है. अब पोइट क्या कहना चाह रहा है कि जो यादें हैं वो मानो कल्पनाएं और यादें मिलकर एक ताना बाना बुन रही हैं और हमारे मन में बहुत सारी फैंसीज, बहुत सारी कल्पनाएं जन्म देती हैं जब हम सॉफ्टली उस फॉलिंग रेनिंग साउंड को सुन रहे होते हैं. अब बारिश की जब बूंदों को आपने गिरते हुए देखा होगा तो वो भी कैसे गिरती हैं? ऐसे ऐसे गिरती हैं. तो ऐसे नहीं लगता जैसे कोई थ्रेड है जो नीचे गिराया जा रहा है. तो लाइक दिस द पोइट वांट्स टू से कि एयर थ्रेड्स हैं जिनसे वो ताना बाना बुना जा रहा है. नाउ इन मेमोरीज कम्स माई मदर.
as she used in years ago, to regard the darling dreamers, ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. Let's take up the word meanings. Memory is recollections, यादें. Agone means past time, बीता हुआ समय, उसे agone कहते हैं. डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब सपने लेने वाले, डार्लिंग मतलब प्यारे. तो ये प्यारे बच्चे, माँ के प्यारे बच्चों की बात हो रही है. और मीन्स बिफोर. डॉन इज़ द अर्ली मॉर्निंग टाइम, सुबह सुबह का समय जो होता है, जिसे उषा काल भी कहते हैं हिंदी में, वो होता है. फॉन्ड लुक मीन्स लविंग गेज, माँ की प्यार भरी दृष्टि को यहाँ पर फॉन्ड लुक कहा गया है. लिस्ट, एक्चुअली लिस्ट तो लिस्ट थोड़ी ना यहाँ पे किसी चीज़ की, यहाँ पर लिस्ट का मतलब है लिसन. एंड रिफ्रेन, व्हाट इज रिफ्रेन? रिफ्रेन इज रिपीटेड पार्ट ऑफ ए सॉन्ग. जब भी कोई गाना होता है ना, उसमें दो लाइनें ऐसी होती हैं जो बार बार रिपीट हो रही होती हैं. इन दोज टू लाइन्स आर कॉल्ड द रिफ्रेन ऑफ द सॉन्ग. उन्हें रिफ्रेन कहते हैं. Now let us discuss the poem. Now in memories comes my mother. अब अभी तक तो वो कह रहा था कि यादें जो हैं ताना बाना बनाती हैं, और अब उसे लेटे लेटे एकदम से अपनी माँ की याद आ जाती है. नाउ इन मेमोरी, अब उसकी यादों में आता है कौन? माय मदर, उसकी माँ आती है. शायद वो उसके साथ नहीं रहती हैं अभी, इसलिए उसको उनकी याद आ रही है. एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, और माँ की भी कौन सी इमेज याद आ रही है? बिल्कुल वो वाली इमेज जो वो देखा करता था इन ईयर्स अगोन, बीते हुए सालों में. जब वो छोटा था तब उसने अपनी माँ की जो इमेज देखी थी, वो कैसे लाड़ करती थी, वो इमेज उसके दिमाग में आ रही है. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, जो कि रिगार्ड करती थी अपने डार्लिंग ड्रीमर्स का, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी. और बिफोर, कब? बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और वो उन्हें ध्यान रखती थी तो क्या करती थी? वो उन्हें सोने देती थी. और कब तक सोने देती थी? बिफोर शी लेफ्ट देम, और उन्हें तब तक नहीं छोड़ती थी टिल द डॉन, जब तक कि सुबह का समय नहीं आता था, तब तक वो उन्हें सोने देती थी और उन्हें उठाती नहीं थी. ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और अब उसे याद आ रही है कि हर फॉन्ड लुक, कितने प्यार से माँ उसे देखा करती थी. एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और ये याद कब आ रही है? एज आई लिस्ट, जब पोएट सुन रहा है, टू दिस रिफ्रेन, ये जो बारिश का जो म्यूज़िक है, इसको जब वो सुन रहा है, इस संगीत को जब वो सुन रहा है, तो उसे वो माँ की वो नज़र याद आ रही है. विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, और ये जो संगीत है जो कि कहाँ पर बज रहा है? अपॉन द शिंगल्स, शिंगल्स के ऊपर बज रहा है. बाय द पैटर ऑफ द रेन, किस चीज़ से बज रहा है? रेन की पैटर से बज रहा है. सो हियर we have read the poem and we have come to know how the poet felt when he heard the soft music of the rain, and how he was so much impressed that he started thinking about his mother, and her loving and caring attitude towards him. Now let us discuss the poetic devices involved in this poem. First of all, first stanza. Let us look at the rhyme scheme of this poem. Last word is
हावर। अब हावर, स्फीयर्स, डार्कनेस, टीयर्स, पिलो, बेड, पैटर, ओवरहेड। हावर के लिए हमने ए यूज़ किया। स्फीयर्स हावर से मैच नहीं करता तो उसके लिए बी कर दिया। डार्कनेस भी मैच नहीं कर रहा तो सी हो गया। लेकिन टीयर्स स्फीयर्स के साथ मैच करता है तो बी हो गया। तो ए बी सी बी। अभी हमारा पूरा स्टैंजा नहीं हुआ है। ए बी सी बी फर्स्ट 4 लाइंस की हो गई। पिलो ऊपर किसी से मैच नहीं कर रहा है तो डी आ गया। बेड ई हो गया। पैटर भी किसी से मैच नहीं कर रहा है तो एफ हो गया। लेकिन ओवरहेड बेड से मैच कर रहा है तो ई हो गया। तो हमारी इस स्टेंजा की जो राइम स्कीम है वो है ए बी सी बी डी ई एफ ई। ए बी सी बी डी ई एफ ई, ये आपकी इस स्टेंजा की राइम स्कीम है। Now let us look at the literary devices used in this poem, and in them first of all comes alliteration. What is alliteration? Repetition of same consonant sounds in a line is called alliteration. सेम कॉन्सोनेंट साउंड का जब हम रेपिटेशन होता है, बार बार आ रहा हो, तो हम उसे एलिट्रेशन बोलते हैं। लेट अस लुक द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा। ह्यूमिड हावर, एच साउंड इज बीइंग रिपीटेड, ह साउंड का रिपीटिशन हो रहा है तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। नेक्स्ट लाइन में देखिए स्टारी स्फीयर्स, स का रेपिटेशन है तो यहाँ भी एलिट्रेशन है। नेक्स्ट देखिए प्रेस पिलो, प साउंड का रेपिटेशन है तो यहाँ भी एलिट्रेशन है। एंड देन लाई लिसनिंग, ल साउंड का रेपिटेशन है तो यहाँ पर भी आपका एलिट्रेशन है। इन सभी लाइंस में एलिट्रेशन है। अब एलिट्रेशन के अलावा एक और लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज़ हुई है एंड दैट इज ऑनोमेटोपिया। Onomatopoeia is a literary device where we use sound words to express our feelings, our things. Sound words का अगर बार बार इस्तेमाल हो रहा हो तो उस लिटरेरी डिवाइस को हम onomatopoeia कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए gently weeps in rainy tears, please to press the pillow। यहाँ पर देखिए पैटर, जो हमारा वर्ड यूज़ हो रहा है ये क्या है? ये एक ऐसा वर्ड है जो क्या शो करता है? साउंड को शो करता है। लिसनिंग, लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द रेन। तो यहाँ पर आपका ऑनोमेटोपिया है। देन पर्सोनिफिकेशन, इसके अलावा पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ है इसमें। पर्सोनिफिकेशन कैसे है ज़रा आप ये लाइन देखिए। एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। मेलंकली डार्कनेस, डार्कनेस क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है और उस नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग की क्वालिटी दी गई है, एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी दी गई है। जब किसी नॉन लिविंग चीज़ को ह्यूमन बीइंग की या लिविंग बीइंग की क्वालिटी पोइट इस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, देता है, तो दैट लिटरेरी डिवाइस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। एट्रीब्यूटिंग human qualities to a non-living thing is called personification. Here melancholy darkness कोई non-living darkness क्या है? non-living है और ये क्या कर रही है? weeps, रो रही है। जिसमें इन रेनी टीयर्स में, तो यहाँ पर रोने की क्वालिटी, रोता कौन है? इंसान रोते हैं, अंधेरा थोड़ी ना रोता है। तो ये क्वालिटी इनको दी गई है, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। Let's move to the next stanza. Every tinkle on shingles has an echo in the heart. अब यहाँ पर भी आपकी जो
राइम स्कीम है वो देखिए, शिंगल्स, शिंगल्स के लिए ए आ गया, हार्ट मैच नहीं करता इसलिए बी हो गया, फैंसीज ये भी मैच नहीं करता, सी हो गया, स्टार्ट हार्ट के साथ मैच कर रहा है तो बी हो गया, रिकलेक्शंस डी हो गया, वूफ मैच नहीं करता ई हुआ, पैटर मैच नहीं करता एफ हो गया, और रूफ वूफ से मैच कर रहा है तो ई हो गया। तो अगेन हमारी जो राइम स्कीम है वो बनेगी ए बी सी बी डी ई एफ ई। ये हमारी राइम स्कीम हो गई। देन एलिट्रेशन का भी इसमें एग्जाम्पल मिलता है हमें। देखिए, बिजी बीइंग स्टार्ट, ब साउंड का रेपिटिशन हो रहा है इसलिए एलिट्रेशन है। देयर एयर थ्रेड्स, थ साउंड का रिपीटिशन हो रहा है तो यहाँ भी क्या है, देयर थ्रेड्स, यहाँ भी आपका एलिट्रेशन है। रेन ऑन द रूफ, अगेन र साउंड का रेपिटिशन है तो एलिट्रेशन है। ऑनोमेटोपोइया इस स्टैंजा में और ज़्यादा क्लियर हो रहा है। देखिए, यहाँ पर वर्ड उसने यूज़ किया टिंकल, टिंकल इज़ अ साउंड वर्ड। इको इन द हार्ट, इको भी साउंड वर्ड है। देन पैटर, तो ये सारे उसने साउंड वर्ड्स का यूज़ किया है, तो और उनकी वजह से यहाँ पर कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, ऑनोमेटोपोइया। पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर इस स्टैंजा में भी हमें देखने को मिलता है। देखिए, weave their ear threads into woof, 1,000 recollections and 1,000 recollections weave their ear threads into woof। अब वीविंग का काम, बुनने का काम, कपड़े बुनने का काम, बुनाई का काम कौन करता है, वीवर करता है। और वीवर कौन होता है, ह्यूमन बीइंग होता है। लेकिन यहाँ पर वीविंग का काम कौन कर रहा है, 1,000 रिकलेक्शंस जो है वो वीविंग का काम कर रही हैं। तो यहाँ पर उनको रिकलेक्शंस को, उन मेमोरीज़ को वीविंग करते हुए दिखाया गया है। तो ये एक पर्सोनिफाई किया गया है रिकलेक्शंस को, और ये पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ट्रांसफर्ड एपिथेट का भी देखने को मिलता है। देखिए, एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज। अब ड्रीमी कौन होता है, ड्रीम कौन लेता है, इंसान लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर ड्रीम किसके दिखाया गया है, फैंसीज़ के। तो ये जो इंसानों की क्वालिटी फैंसी को दी गई है, तो इस तरह की लिटरेरी डिवाइस जहाँ पर ह्यूमन की, मतलब जो नाउन किसी और का लगना चाहिए और उसको किसी और को दे दिया जाए तो उसे ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। एपिथेट मीन्स एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जो ड्रीमी, इंसानों का जो ड्रीम लेने वाला एडजेक्टिव है वो फैंसीज को दे दिया गया है। तो हेयर वी हैव यूज्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। राइम स्कीम अगेन देखिए, मदर ए, अगॉन बी, ड्रीमर्स सी, डॉन और अगॉन मैच कर रहा है तो बी, ए बी सी बी, मी डी, रिफ्रेन अलग है तो ई, शिंगल्स एफ, और रेन रिफ्रेन से मैच कर रहा है तो ई। ए बी सी बी डी ई एफ ई, ये आपकी यहाँ पर राइम स्कीम हो गई। अगेन एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखिए, मेमोरी माय मदर, म साउंड का रेपिटेशन हो रहा है। डार्लिंग ड्रीमर्स, ड साउंड का रिपीटिशन हो रहा है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन यूज़ किया है पोइट ने।
So I think now this poem is clear to all of you, and it has excited some feelings about the rain in your heart also. So next time when you experience the rain, when the rain is falling, then you can think about this poem also. Read the poem and try to understand it, and if there is any problem, you can ask me in the comment section. And if you find the video useful, you can like it and give your comments whatever you want me to do besides explaining the poems or lessons. And I'm always, your views will be welcomed. And on this point, thank you and have a nice day.